بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بری صحبت کا انجام۔ آج کی اس مصروف دنیا میں جہاں ہر کوئی اپنی اپنی دوڑ میں مگن ہے، وہاں ایک چھوٹا سا شہر راول اپنی دھیمی رفتار زندگی کے لیے مشہور تھا۔ اس شہر کے ایک پرانے سے پارک میں ہر شام کی طرح آج بھی ایک نوجوان لڑکا علی بینچ پر بیٹھا اپنے موبائل فون میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر کوئی 18-19 سال تھی اور وہ کالج کا طالب علم تھا۔ سامنے کی طرف سے ہنستے کھیلتے چلتے ہوئے ایک گروپ کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں۔ اس گروپ میں ایک لڑکی زینب خاص طور پر اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ زینب کی مسکان میں ایک ایسی کشش تھی جو علی سے چھپی نہ رہ سکی۔ اتفاق سے زینب بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی، بس کلاس الگ تھی۔ ایک دن کالج کی لائبریری میں ان کی ملاقات ہوئی۔ دونوں ایک ہی کتاب کے لیے پہنچے تھے۔ یہ معمولی سی ملاقات ایک خوبصورت دوستی کا نقطہ آغاز ثابت ہوئی۔ پہلے فیس بک پر بات چیت ہوئی، پھر واٹس ایپ پر باتوں کا سلسلہ بڑھا۔ ہفتے گزرتے گئے اور دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے۔ علی کو زینب کی معصومیت اور سادگی پسند تھی، تو زینب علی کے سنجیدہ اور شائستہ لہجے کی دلدادہ ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کی یہ دوستی ایک گہرے جذبے میں بدلنے لگی۔ علی نے ایک شام پارک میں بیٹھ کر زینب سے اپنے دل کی بات کہنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے زینب کو پارک بلایا۔ جب زینب آئی تو علی کے ہاتھ میں اس کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ تھا۔ زینب، تمہیں پتا ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ علی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ زینب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، بتاؤ تو۔ تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو، علی نے کہا۔ زینب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے بھی مان لیا کہ وہ بھی علی سے بے حد محبت کرتی ہے۔ یوں دونوں کے درمیان محبت کا ایک سفر شروع ہوا۔ لیکن ہر کہانی کی طرح اس کہانی میں بھی آزمائشوں کا دور آیا۔ زینب کے گھر والوں کو جب اس رشتے کا پتہ چلا تو وہ سخت مخالفت پر اتر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ علی کے پاس نہ کوئی اچھی نوکری ہے اور نہ ہی مالی استحکام۔ زینب کے والد نے اسے سمجھایا، بیٹی، محبت پیٹ بھرنے سے نہیں ہوتی۔ عملی زندگی میں معاشی استحکام بہت ضروری ہے۔ زینب نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے علی سے کہا کہ وہ کچھ عرصہ انتظار کریں، وہ اپنے گھر والوں کو منا لے گی۔ لیکن علی کے گھر والوں کو بھی اعتراض تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ علی پہلے اپنی پڑھائی پوری کرے، اچھی نوکری حاصل کرے، پھر شادی کے بارے میں سوچے۔ یہ وہ وقت تھا جب علی اور زینب کے رشتے کی حقیقی آزمائش شروع ہوئی۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ بیرون ملک جا کر کام کرے گا تاکہ جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ یہ فیصلہ زینب کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اس نے علی کا ساتھ دیا۔ علی ملک سے باہر چلا گیا۔ پہلے تو دونوں روزانہ بات کرتے، ویڈیو کال پر ایک دوسرے کو دیکھتے۔ لیکن پھر وقت کے فرق، مصروفیات اور فاصلے نے دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنی شروع کر دیں۔ بات چیت کم ہوتی گئی۔ 1 سال گزر گیا۔ علی واپس آیا تو وہی پرانا علی نہیں رہا تھا۔ اس کے اندر تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو زینب سے محبت کرتے وقت تھی۔ ملاقات ہوئی تو دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ تمہاری تو بہت تبدیلی آ گئی ہے علی، زینب نے کہا۔ زندگی بدل دیتی ہے زینب، علی نے جواب دیا۔ بات چیت کے دوران پتہ چلا کہ علی کی ملاقات وہاں ایک اور لڑکی سے ہوئی تھی، جو اس کے ساتھ کام کرتی تھی، اور دونوں میں قربت بڑھنے لگی تھی۔ علی نے یہ بات زینب کو بتائی تو وہ سن کر رہ گئی۔
तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई। ज़ैनब की आवाज में दर्द था। नहीं, ऐसा नहीं है। बस शायद फासले और वक्त ने हमारे दरमियान हकीकतों की दीवारें खड़ी कर दी हैं, अली ने कहा। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों से आंसुओं की लरी बह निकली। इसने कभी सोचा भी ना था कि इसकी मोहब्बत का ये हश्र होगा। इसने अली को अलविदा कहा और चली गई। कुछ महीने गुजर गए। अली ने दूसरी लड़की से शादी कर ली, जबकि ज़ैनब ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने का फैसला किया। वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी, नौकरी हासिल की और अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश की। एक दिन इत्तेफाक से दोनों की मुलाकात हो गई। ज़ैनब को देखकर अली के दिल में कसक सी उठी। तुम कैसी हो ज़ैनब? अली ने पूछा। बहुत अच्छी हूँ, ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारी शादी के बाद मैंने समझा कि जिंदगी मोहब्बत तक ही महदूद नहीं है। मैंने अपने आप को दरियाफ्त किया, अपनी सलाहियतों को पहचाना और अब मैं खुश हूँ। अली ने महसूस किया कि ज़ैनब वाकई बदल चुकी थी। वो पहले से कहीं ज्यादा पुरइत्माद और मजबूत नजर आ रही थी। मुझे अफसोस है ज़ैनब, अली ने कहा। नहीं, माजरत की कोई बात नहीं। हमारा रिश्ता एक सबक था। तुमने मुझे छोड़ा, जिंदगी ने मुझे सिखाया। अब मैं समझती हूँ कि मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं जाती, बस अपने अंदर की मोहब्बत को पहचानना होता है, ज़ैनब ने कहा। ये कहकर ज़ैनब चली गई और अली सोच में पड़ गया। इसे एहसास हुआ कि इसने क्या खोया और क्या पाया। बुरी सोहबत या गलत फैसले कभी कभी जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर करते हैं, लेकिन अगर हम उनसे सबक सीखें तो फिर हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। जवानी के जज्बात खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनके साथ अक्ल व शऊर से काम लेना भी इतना ही जरूरी है। बस एक नज़र में ही सब कुछ बदल गया। ज़ैनब की वो पुरइत्माद मुस्कुराहट इसके चले जाने के बाद भी अली के जहन में घूमती रही। वो पार्क का वही पुराना बेंच था जहां सब कुछ शुरू हुआ था, मगर अब हर चीज बदल चुकी थी। अली ने गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। उसकी शादी को अभी सिर्फ 6 माह हुए थे, लेकिन वो पहले ही अपने फैसले पर शक करने लगा था। उसकी बीवी, सना, अच्छी थी, मगर उसके और ज़ैनब के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सना मटीरियलिस्टिक थी, हर वक्त नई चीज़ें खरीदने की बातें करती, जबकि ज़ैनब सादगी पसंद थी। उसी शाम अली ने सना से एक छोटे से मामले पर झगड़ा हो गया। सना एक महंगी ब्रांडेड बिग लेना चाहती थी, जबकि अली समझा रहा था कि फ़िलहाल उनकी माली हालत ऐसी नहीं है। तुम मुझे खुश नहीं रख सकते, सना ने गुस्से से कहा। खुशी सिर्फ चीजें खरीदने से नहीं आती, सना, अली ने कहा। तो फिर किससे आती है? तुम्हारी इस ज़ैनब से, सना ने तनज़ किया। ये नाम सुनकर अली खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि उसकी बीवी को उसके माजी का पता था। वो कमरे से बाहर निकल आया और पार्क की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ ज़ैनब अपनी जिंदगी में मसरूफ थी। वो एक अच्छी कंपनी में मुलाजिम थी और अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। इसकी मुलाकात एक नए कॉलीग, अहमद, से हुई थी जो उसके जैसा ही पढ़ा लिखा और संजीदा था। अहमद ने कई बार ज़ैनब को बाहर डिनर पर चलने की पेशकश की, मगर ज़ैनब हर बार माजरत कर लेती। एक दिन दफ्तर में अहमद ने ज़ैनब से पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम अभी तक अपने माजी से बाहर नहीं निकल पाई हो? ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माजी मेरे लिए एक सबक है, कोई जंजीर नहीं। मैं सिर्फ अपने लिए सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। उसी दौरान अली की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। सना के मुसलसल मुतालबात और इसके गैर संजीदा रवैये ने अली को मायूस कर दिया था।
एक दिन सना ने अली से कहा कि वो अपने वालिदैन के घर जा रही है क्योंकि अली इसके मयार जिंदगी को पूरा नहीं कर पा रहा था। अली तन्हा रह गया। एक शाम वो ज़ैनब के दफ्तर के बाहर जा खड़ा हुआ। जब ज़ैनब बाहर निकली तो उसने अली को देखा। अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ैनब ने हैरत से पूछा। मैं तुमसे मिलना चाहता था, अली ने झिझकते हुए कहा। ठीक है, बात क्या है? ज़ैनब ने पूछा। अली ने अपनी परेशानियां बयान की, अपनी नाकाम शादी के बारे में बताया और माफी मांगी। ज़ैनब ने गौर से इसकी बातें सुनी, फिर कहा, अली, वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं। तुम्हारी शादी हो चुकी है और मैंने अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली है। क्या हम दोबारा दोस्त बन सकते हैं? अली ने उम्मीद से पूछा। दोस्ती के लिए दो लोगों का मुत्तफिक होना जरूरी है, और अब हम दोनों मुख्तलिफ रास्तों पर हैं, ज़ैनब ने नरमी से जवाब दिया। ये कहकर ज़ैनब चली गई। अली ने महसूस किया कि इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। कुछ महीने और गुजरे। ज़ैनब ने अहमद के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने का फैसला किया, जबकि अली ने सना से तलाक ले ली और अपने आप को अपने कैरियर पर फोकस किया। एक साल बाद रावल शहर के एक काफी शॉप में अली और ज़ैनब की एक और मुलाकात हुई। इस बार ज़ैनब के हाथ में एक अंगूठी थी और वो अहमद के साथ थी। मुबारक हो, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, ज़ैनब ने जवाब दिया। तुम कैसे हो? मैंने सीख लिया है कि खुशी किसी दूसरे शख्स पर मुनहसर नहीं होती, ये हमारे अपने अंदर होती है, अली ने कहा। ज़ैनब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बिल्कुल, और बाज़ औक़ात ज़िंदगी के तल्ख़ तजर्बे हमें सबसे कीमती सबक सिखाते हैं। अहमद ने अली का हाथ मिलाया और दोनों जोड़े ने अलग होने से पहले खुशगवार बातचीत की। इसके बाद अली ने कभी ज़ैनब से मिलने की कोशिश नहीं की। इसने सीख लिया था कि बाज़ रिश्ते सिर्फ सबक सिखाने के लिए होते हैं और इन्हें माजी में ही छोड़ देना बेहतर होता है। ज़ैनब ने अहमद के साथ एक खुशगवार जिंदगी शुरू की। इसने सीखा था कि मोहब्बत में एतमाद, एहतराम और यकसोई सबसे अहम है। कहानी का ये दूसरा हिस्सा हमें सिखाता है कि 1. फैसले अक्ल और दिल दोनों से करने चाहिए। 2. शादी सिर्फ जज्बाती फैसला नहीं, अमली फैसला भी है। 3. माजी से सबक लेकर हाल में जीना ही दानिशमंदी है। 4. खुद शनासी और खुद इत्मीदी ही हकीकी कामयाबी है। 5. हर रिश्ते की एक मुकर्ररा मुद्दत होती है, इसे कुदरती तौर पर ख़त्म होने देना चाहिए। अली और ज़ैनब की कहानी हमारे इर्द गिर्द के बहुत से नौजवानों की कहानी है जो मोहब्बत और ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर बुरे अंजाम के बाद भी ज़िंदगी में नई उम्मीद, नई शुरुआत होती हैं, बशर्ते हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें।